सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और याली मदद दोस्तों। आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते कनाडा के स्टूडियो से अकबर हिराव को। दोस्तों, आई एम प्रीटी श्योर लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर इन योर माइंड कि all of a sudden when Salam Namaste Canada radio and TV program was at its peak, all of a sudden Akbar Hirao का disappear हो गया। So the answer is threefold. First of all, I got very busy at work as I got like multiple promotions in the last few years. And, continuing a side hustle with a demanding career, it's always difficult. So that's actually the reason number one. Number two, I actually set myself like very rigorous academic goals for which like I actually needed to go to like University of McGill, where I completed my advanced management program. I went to University of Cambridge for my sustainable finance program, and I went to University of Oxford for executive strategy development program. So you could imagine like how difficult it is like with this kind of rigorous academic goals, continuing a side hustle. The third, which is very close to my heart, as you know, that I always wanted to be a writer. And I'm very happy to share with you that now my book, Rehania, is in published mode, and right now it's available through Amazon. So please, अगर आपने रिहानिया नहीं पढ़ी है, it's an English novel. Read it out, share your feedback with me. So now, after all these activities in my life, I actually felt like now things are actually more manageable. So I want to revive Salam Namaste Canada podcast again. And I want to emphasize on individuals who are high achievers, who have like spent their life creating excellence in their life. जिन्होंने ओवरकम किए अपने ऑब्स्टेकल्स को, अपने प्रॉब्लम्स को, एंड दे अचीव्ड सक्सेस विदाउट outsiders help. So that's basically what we are going to focus in this particular podcast. And I'm pretty sure you will actually admire those individuals who are actually day-to-day people, but they set goals which are actually like high standard goals, and they have achieved it. So, ladies and gentlemen, without any further delay, let me introduce you to the first season and the first episode of Salam Namaste Canada. And with us today, the superstar fashion designer Altaf Manisha is on the hot seat. Altaf, welcome to the show. थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी कमाल की किताब लिख दी है। आप कह रहे हैं कि आप गायब हो गए थे। अगर इस तरह गायब होना है तो मेरे ख्याल में मुझे भी किसी दिन गायब होना है। So, Altaf, just for our viewers, I let them know that Altaf and myself, we practically pretty much grew up in the same locality. So I know a lot about Altaf. But Altaf, there are actually people who are watching us today. They really like to know about who Altaf Manisha is. I'm pretty sure like they can Google it. Okay. However, I really want you to start from the very beginning. You have spent your early childhood in a village, and now achieving an amount of success that took you to New York Fashion Week. This is an incredible journey. Could you tell us a little bit about your early life when you were in village? So I was in village until I was 12 years old. तो विलेज के हालात यार वैसे ही थे जो, क्योंकि विलेज की प्रोग्रेस जो है वो इतनी फास्टर प्रोग्रेस नहीं है जैसे सिटी की होती है। मतलब अगर सिटी में 5 साल में कुछ चीज़ें तब्दील होती है तो विलेज में मे भी 25 साल तक वही चीज़ें होती है। That's very true. Yeah. मेरे बाप दादा जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ।
वही करिकुलम, वो वही दरख्त, इवन दरख्त तक चेंज नहीं हुआ है। तो उसी तरह का लाइफ़स्टाइल जिस तरह गाँव में बच्चे होते हैं, तो इट्स डेफिनिटली टफ। मैं टफ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट टू कि ये लिखा हो कि बहुत मुश्किल लाइफ़ से गुज़रे हैं, बट या रियल में इस तरह के हालात तो होते हैं। स्कूल वगैरह को ख़ास ठिकाना वगैरह होता नहीं है। टीचर्स को खुद अंग्रेज़ी नहीं आती। मुझे याद पड़ता है, एक टीचर आया था और वो हमें सिखा रहा था एबीसीडी, तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि यार ये अंग्रेज़ी सिखा देगा। उसने ई तक सिखाया, उसके बाद गायब हो गया। तीसरा जो को ई के बाद नहीं आता था। आई मीन आई रिस्पेक्ट द टीचर्स, बट कोई तरीका नहीं था वहाँ कि सही तालीम हासिल की जा सके। उसके बाद किसी और नेबरिंग सिटी बोलो, टाउन बोलो, वहाँ जाना हुआ। 1 डेढ़ घंटा हम चलते थे बीच में। साँप बोलो, आई मीन जैसे जंगल टाइप की चीज़ें होती है, राइट, समझ लो पत्थरों के खिलाड़ी से बन के निकलते थे। बाद बस वहाँ जाके कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि गाँव ने नहीं सीखा। गाँव ने बहुत कुछ और बहुत अमेज़िंग चीज़ें सिखाई है जो मुझे आज तक काम आ रही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सेक्युलर एजुकेशन, जो प्रॉपर जो एजुकेशन होती है, वो चीज़ें वहाँ अनफॉर्चुनेटली थी नहीं। इवन छोटी से छोटी चीज़ें जैसे पीने का पानी, आप पीने का पानी 1, 2, 3 माइल चल के जाओ में भी ज़्यादा, उसके बाद अगर मटका टूट गया, पीने का पानी भी रहेगी और आप नहा भी नहीं सकते। वैसे भी हम नहाते थे हफ्ते में 1 ही बार, क्योंकि कोई और तरीका था नहीं। तो ओवरऑल फार्मिंग वगैरह करना और वही तमाम चीज़ें जो बच्चे गाँव में जिस तरह खेलते हैं, स्लीपर्स कभी थे, कभी नहीं थे। तो वो वैसा लाइफ़स्टाइल था, और वो लाइफ़स्टाइल मुझे आज मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज़ शायद उसकी वजह से मेरे पेशेंस अभी भी बहुत बरकरार है। कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, तो ज़रा अब थोड़ा ईज़ियर लगता है, बहुत बेहतर लगता है। Yeah, yeah, Altaf, thanks for pointing out that. And that's the irony. Like, हमारे जो developing countries है, either we are from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, whatever country we belong to, developing nations के अंदर this is a fact that जिस तरह से urban cities grow up हो रही हैं, although there are challenges there, मगर rural settings are still very, very problematic, right? Even the basic necessities, like जैसे तुमने highlight किया, water supply or education, which is not like a luxury, it's actually basic necessities of life. Those are actually not available. So yeah, but circumstances, yeah, श्योर, जब आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो आपके लिए हॉरर तो नहीं, बट लेट्स से जब वो चीज़ आपको पसंद ना आना शुरू करे, इसका मतलब ये है कि आपका हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा शौक, तो साल में 1 ही दिन ऐसा आता था जब कोल्ड ड्रिंक पी जा सकती थी, अगर पैसों का इंतज़ाम हो गया तो। out. तो उस वक़्त मुझे कोल्ड ड्रिंक का इतना शौक था कि पैसा है कोल्ड ड्रिंक पियो, पैसा है कोल्ड ड्रिंक पियो। अब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है। तो बात ये है कि उस वक़्त गाँव में जो छोटी-छोटी खुशियाँ, सिंपल चीज़, जैसे हमारे वहाँ एक आइसक्रीम वाला आता था, तो वो आइसक्रीम वाले के पीछे मैं 2 घंटे घूमता रहता था। इसलिए ताकि वो एंड में जाने से पहले एक बर्फ का छोटा टुकड़ा दे। जैसे हो इस तरह की खुशियाँ जो है ना, गाँव में बड़ी हुआ करती थी। आपको अगर स्लीपर मिल जाए, आई मीन पहनते थे स्लीपर, लेकिन बच्चे गाँव में नॉर्मली पहनते नहीं। मिल जाए तो ज़रा सँभाल के चले कि ये कहीं खराब ना हो जाए, मतलब सो आज भी मेरी शुरू इश्यू आई है थोड़ा-सा। जी। बिल्कुल, छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होते थे और इतनी बड़ी तमन्ना भी नहीं की थी कि कि आज एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर बैठे हैं होंगे और हम इस तरह से या इस तरह की सेटिंग्स में होंगे, राइट? और आपके लिए तो मेरे ख्याल से क्योंकि आपने स्पेंड किया, मैं कभी विलेज एक्सपीरियंस नहीं किया बैक होम, बट इट इज़ डेफिनिटली फ्रॉम अदर पीपल एक्सपीरियंस लाइक यू, I always actually think we are way behind in time
राइट? जहाँ पे हम अपनी नेशन को, बहुत बड़ी नेशन को एक बेसिक नेसेसिटीज नहीं दे पा रहे, और वहाँ पे एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आपने कहा छोटी सी चीज मिल जाती है, पीपल सो हैप्पी, राइट? नाउ आई वांट टू एक्चुअली स्टेप फर्दर इन योर करियर। सो आप विलेज से शहर की तरफ मूव हुए। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? मैं आपको बताऊँ, जब विलेज से हम शहर की तरफ, पहले तो ये पता चला कि विलेज से हम शहर आ रहे हैं, मेरे ख़्याल में मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था वो। व्हाई? बिकॉज़ शहर मूव नहीं होना था। अब गाँव में तो कोई सिखाएगा नहीं हमको कि शहर में ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब ट्रेन में मैं बैठा, फ़ास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ, तो ट्रेन में ऐसे ही करके बैठा था मैं, आई थिंक 3-4 घंटे मैं वैसे ही बैठा था, क्योंकि वो बैठने का दिल ही नहीं करता था कि अब शहर जाना पड़ेगा, अब शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई तमन्ना ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि क्या सिक्योरिटी के इश्यू लग रहे थे, सिक्योरिटी एज़ इन पर्सनल सिक्योरिटी, कि वहाँ जाके कैसे हालात होंगे, क्या सपोर्ट सिस्टम होगा। बड़ा वो कम्फर्ट लेवल से निकलना जो है ना, एक बच्चे के लिए मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला था। या बट फाइनली हम कराची आए। कराची आने के बाद मेरे चचा जो है, एक तो वो दूध वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रोज़ ये कहते आठ, मैंने कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कराची में बिल्डिंग्स देखी। मुझे इतना मज़ा आया, मतलब वो बिल्डिंग्स जैसे मैंने कोई मैनहट्टन देख लिया। वो बिल्डिंग्स दे ये बिल्डिंग्स पे चढ़ने के लिए उनके साथ मैं क्या हुआ, बिल्डिंगें ही देखता, कि यार क्या कमाल कुइज़ है, क्या बिल्डिंग्स है, तो 3 महीने तक तो यही लगा था कि अब दोबारा जो है ना विलेज चले जाना चाहिए, क्योंकि दोस्त नहीं बन रहे थे। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आदत हो गई, और फिर अब जो है कराची मतलब इज़ माय हार्ट, मतलब कराची मुझे बहुत पसंद है। कराची हमारा दिल है। कुछ चीज़ें जो है ना, कभी आप नहीं चाहते हो और हो जाती है, तो फिर वो कभी-कभी वो बहुत बेहतर होती है। Yes, and that's the punchline. Like you nailed it. Like Altaf, sometimes we actually think that this is actually not the right thing for us, right? एक डिटैच्ड होने का एक डर होता है, खौफ होता है, और एक नए प्लेस में जाने का, नए लोगों से मिलने का एक अपना ही एक जिसे कहते हैं डर नहीं कहना चाहिए, मगर एक थोड़ा सा कंसर्न्ड होता है आदमी, ठीक है? और एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 12 साल का है, if I take your example, Altaf, definitely detaching from like your village was definitely a devastating experience at that time. But as you said कि like वो एक blessing in disguise थी, ठीक है? वो truly आपके लिए एक I think like higher self, खुदा का एक प्लान था आपके लिए कि आपको एक ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पे आप वाकई अपनी सक्सेस की पीक तक पहुंचोगे, right? Tell me about once you actually moved to Karachi and when you start pursuing your education. Tell me about that journey, the education journey. जी, जी, जी। सो कराची में आने के बाद तो ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन ले लेता। आई मीन गाँव वगैरह में हम फर्स्ट आते थे, बिकॉज़ छोटा था, शायद हम पढ़ने में थोड़े बेहतर थे, जो भी सिचुएशन थी। कराची में आने के बाद वो सीन नहीं था, क्योंकि यहाँ प्रॉपर स्कूल्स थे, जैसे भी थे प्रॉपर स्कूल्स थे एट लीस्ट। Yeah. तो लैंग्वेजेस मुझे सीखनी पड़ी, अम, अंग्रेज़ी स्पेशली। तो मैंने 1 महीने ट्यूशन वगैरह ली थी, ट्यूशन के बाद लैंग्वेज वगैरह थोड़ी और पॉलिश की। फिर मैंने 7वीं क्लास में एडमिशन लिया, और उसके बाद फिर कराची की जर्नी शुरू हो गई। तो स्टार्ट के अंदर स्ट्रगल डेफ़िनेटली था, क्योंकि मुश्किल था, एडजस्ट होना एक तो मुश्किल था, लैंग्वेज का इश्यू था, बट फाइनली हो गया। Okay. So आपका एजुकेशन का जर्नी शुरू हुआ, एंड वो एजुकेशन के जर्नी ने फाइनली आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक लेकर गया, एंड यू एक्चुअली graduated with a master's degree from Italy, I believe. Is that right? Yes. Yeah, and that master's degree was in fashion designing. Fashion merchandising and marketing. So my bachelor's was in fashion design, specialized in women's wear. Master's in fashion merchandising and marketing, and then applied studies in international fashion management. और उसके बाद फिर यहाँ के न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा मैंने किया। New York Film Academy. How was that experience for you?
इट वाज़ ग्रेट। आई मीन आई लव फ़िल्म मेकिंग, सो फ़िल्म मेकिंग के लिए मैं कभी मना नहीं करता हूँ। मेरा फ़ोन प्लेस्टेशन अब पे भरा होता है। मुझे अगर अगर मैं डिज़ाइनर ना होता तो मैं फ़िल्म मेकर होता, और अभी भी वो ड्रीम ख़त्म नहीं हुआ है, वो ड्रीम ही जारी है। मे बी इन फ्यू इयर्स आई विल प्रोबब्ली मेक फ़िल्म, अगर चांस सही मिला मुझे तो। Nice. Now, tell me about like a time. I'm actually going a little bit a step back on your journey. And when was the time, Altaf, आपको ऐसा लगा कि यार filmmaking, fashion designing is the field for me. This is something like where my passion is. This is something what I want to do. Okay. And this is something where I can actually achieve the level of success which I always desire for. ये बहुत क्रिटिकल चीज होती है, इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। लाइक बहुत सारे हमारे ऑडियंसेस जो लाइक अभी देख रही हैं हमें, दे वांट टू नो लाइक हाउ दे कैन एक्चुअली सिंपली फाइंड लाइक वेयर देयर पैशन इज। सी पहले तो मैं बताऊँ कि ये करियर चूज़ करना इटसेल्फ जो है ना मुश्किल था, क्योंकि अगर मुझ बैचलर्स डिग्री स्टार्ट करनी की है 2000 में या 2001 में, तो इसका फैसला मुझे 98-99 में लेना था। उस टाइम वो इट वाज़ स्टिल 90s, राइट? तो 90s में किसी से ये पूछना कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूँ या फ़िल्म मेकर, ये सवाल ही गलत है। मतलब लोगों को समझ नहीं आता था। I know what you mean. Yeah. लाइक बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग, दैट ऑल मेक सेंस। बट स्टार्ट के 2 इयर्स मैंने मेडिकल पढ़ा था, बट वो मेरे काम का नहीं था, वो मुझे पूछा गया था ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे टीचर कहते थे आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप मेडिकल लें, मतलब ऑफ चॉइस नहीं। सो एनीवेज़, सो फाइनली मैं चुपके से डिज़ाइनिंग के उसमें एडमिशन ले लिया। मम्मी इस चीज़ में जो है ना मेरी कभी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि एक तो उनको शायद इनका पता भी नहीं था, और शी इज़ ओके विद व्हाटएवर आई डू, बिकॉज़ अ, स्कूल में हमेशा अच्छा था। ज़्यादातर मैं फर्स्ट आया हूँ, तो उस वजह से उनका एक कॉन्फिडेंस था कि शायद कोई चीज़ सही कर रहा होगा। तो करियर चूज़ करने में ज़रा मुश्किल था। आजकल जो है ना बहुत आसान है, बिकॉज़ आज एक्सपोज़र भी ज़्यादा है, और ईज़ियर है एक्सप्लेन करना पेरेंट्स को। Right. व्हाट वाज़ योर सेकंड क्वेश्चन, सॉरी? No, I think like you covered pretty much everything. So if I summarized one thing here, Altaf, for our audiences, मैं आपसे agree करता हूँ, like क्योंकि I actually pursued the career in business management. ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ करियर्स होते थे उस वक्त, राइट? अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जा रहे हैं तो एमबीए और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट? बट आपने अपने पैशन को परस्यू किया बिकॉज यू एक्चुअली थॉट दैट दिस इज रियली द थिंग you want to pursue in your career, right? Now, राइट। when was the time, or if you can actually tell the people who actually encouraged you, as you mentioned briefly about your mother, what a role she has played in your life? आई थिंक अगर मुझे क्रेडिट देना है तो मैं अपनी मम्मी को मुझसे ज़्यादा क्रेडिट दूँगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। किसी भी तरह इज़ पॉसिबल, लेट मी टेल यू, लाइक माय फादर डाइड व्हेन आई वाज़ 2 इयर्स ओल्ड, माय सिस्टर वाज़ बोर्न 10-15 दिन के बाद। उससे पहले मेरे ट्विन ब्रदर की शादी हुई। सो फॉर माय मदर एवरीथिंग वाज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट, एंड शी वाज़ जस्ट 21 इयर्स ओल्ड व्हेन माय फादर डाइड। सो Oh, उनके लिए बहुत मुश्किल था ये सोचना कि मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊँगा। येस, तमन्ना ज़रूर थी। ग्रेजुएट ये सब सुना था। लेकिन गाँव में अगर आप 10 क्लास पढ़ ले तो आप कमाल की चीज़ हो, बट आई थिंक 10th स्टैंडर्ड का मेरे ज़हन में तो कभी इस तरह आया भी नहीं कि उस उतना ही पढ़ेंगे। तो पढ़ाई की तरफ मेरा हमेशा रुझान था। तो मम्मी के लिए बहुत मुश्किल था, लाइक हर स्टेप पे। इवन अब तो खैर चलो बहुत बेहतर है, बट कहने का मतलब ये है कि उनके लिए एक एक तो एजुकेटेड ना होना, एजुकेटेड का मतलब सेकुलरली एजुकेटेड, वैसे तो आई कंसीडर हर वेरी एजुकेटेड, बिकॉज़ बहुत सारी और चीज़ें आप ज़िंदगी में सीखते हो। तो डिसीजन बहुत डिफिकल्ट थे, ये जब तक हम बड़े हुए। इनफैक्ट स्कूल की जब मैं बात करूँ आपको, क्योंकि बात निकली है, तो 10th स्टैंडर्ड के बाद तो कुछ ज़रिया ही नहीं था मेरे पास पढ़ने का। इत्तेफ़ाक़न हम दोनों रंग बाहर से ही हैं, तो
पढ़ाई वगैरह में मैं थोड़ा बेहतर था, तो मेरे पास ट्यूशन के लिए बच्चे आया करते थे, तो उस वजह से फिर मैंने कॉलेज किया। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी दिन में जाते थे और रात में फिर वो जियो टीवी के अंदर 1-2 बजे तक काम करते थे। तो किसी न किसी तरह हो गया। सो उसके बाद फिर इटली गए, इटली से बाकी जो पढ़ाई की वो आपको मालूम है। Wonderful. Like, yeah, so your mother actually played like a very vital role in your development. I completely like, so many times like ऐसा होता है अल्ताफ के like हम इन चीज़ों को acknowledge नहीं करते, right? कि parents कितना अपना contribution करते हैं, right? Hi Sham, like, but I think like listening from you, I really like that aspect कि आप उसको acknowledge करते हो, उसको realize करते हो. Um, आप कुछ इस बारे में कहना चाह रहे हो? यस, प्लीज़ गो अहेड। बात कि एक्नॉलेज तो करते हैं, मैं सच्ची बात बताता हूँ, एक्नॉलेज तो मैं यहाँ करता हूँ, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर मैंने दुनिया में लोगों को देखे, वो माँ को फॉर ग्रांटेड लेते ही हैं। वो ही इज़ यूनिवर्स फैक्ट है, जो कि होना नहीं चाहिए, बट ये होता है। अब जो बातें मैंने आपको बताई शायद मम्मी के सामने मैं ना करूँ, लेकिन उनको मालूम है। बट नॉर्मली ये होता है, मदर की जॉब बिल्कुल मतलब जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उतना अनफॉर्चुनेटली शायद बहुत भी नज़र नहीं है। डेफिनिटली। If you ask like we all are actually the sum total of like our parents, like उनके एस्पिरेशन, उनके गोल्स भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं. So I actually want to go a little further, Altaf. I have seen you like involved in like lot of like women related causes, right? Especially education for women. ठीक है. आप बहुत वोकल भी हो इस बारे में और आप एडवोकेट भी करते हो कि विमेन के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ज़रा मुझे इस बारे में बताना और हमारी ऑडियंसेस को भी कि व्हाई दिस कॉज इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ओके, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली मेक आवर सोसाइटीज़ बेटर एंड सपोर्टिव फॉर वुमेन. देखिए, वुमेन्स राइट्स का जो इश्यू है वो हमेशा से ही है, ठीक है ना? अगर कोई कहे कि आज नहीं है, मैं आई डिसएग्री विद दैट। आज भी है, लेकिन ज़माने के लिहाज से चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हुई है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो आज भी वुमेन को इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, देखिए अगर मेरा एक लड़का और एक लड़की हो, एक को पढ़ाना है तो मैं लड़की को पढ़ाऊँगा, सीधी सी बात है। क्योंकि लड़की घर और जनरेशन को बेहतर सँवारती है। आई थिंक लड़कों से कहीं ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं करते, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आई मीन जब लोग कहते हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, येस दे आर इक्वल, बट एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ में इक्वल नहीं है। किसी चीज़ में वुमेन बहुत पावरफुल है। तो अगर औरतें किसी मुल्क की एजुकेटेड हैं, तो वो मुल्क बहुत जनरेशन को. है, वो एब्सोल्युटली. लेके वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ है, किसी भी चीज़ के अंदर वो मुल्क बेहतर होगा। Absolutely. And I think like you reminded me of Sir Sultan Muhammad Shah Aga Khan. He always, at the time of independence, he always actually said that कि like अगर आपके पास दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, right, and you only have means to educate one of them, right, तो आप अपनी बेटी को एजुकेशन दीजिए, क्योंकि बेटी जाके एक पूरी जनरेशन को एजुकेट कर सकती है. So that's amazing. Like Altaf, thank you for pointing out that. Altaf, coming back to your fashion designing. Okay, ये अल्ताफ ने ग्रेजुएशन कर लिया है. अल्ताफ is pass out, like I mean like अब वो ग्रेजुएट है, right? What was the thing that actually took you to Italy? What was that? Like was that just education, because Italy is actually more familiar and like known for like fashion as well, right? Was that the reason behind that? दैट वाज़ द रीज़न। और जो कोर्स या जो मेजर मैंने करना था वो उस यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट है, आज भी बेस्ट है उसका। तो वो एक वजह थी कि उस यूनिवर्सिटी में मेरा मुझे जाना था। और यूरोप जनरली बहुत खूबसूरत है, बट वो खूबसूरती की वजह से जाना नहीं हुआ था। बेसिकली Right. प्योरली इन एजुकेशन पर्पज़ था। उसकी वजह से फिर वो इटली गया। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इटली गया तो फिर मुझे आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इटली उस तरह का होगा। भाई दे हैव ओल्डर बिल्डिंग्स, बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल की चीज़ है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग थी, क्योंकि
हम प्लेन में ही कभी नहीं बैठे थे। तो भाई तो प्लेन ही बहुत एक अलग चीज़। Okay. And now that was the first time, right? Your air travel? सो आई थिंक दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम, या उससे पहले मैं एक छोटी फ्लाइट ले चुका हूँ। वो मतलब शायद इससे कुछ महीने ना पहले, हाँ, नहीं कुछ महीना पहले, यस। इंडिया जाना हुआ था मेरा 2006 में, उसके बाद गए थे। बट एनीवेज़ वो उसी टाइम के अराउंड जो है वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट का एक्सपीरियंस हुआ था। Amazing, amazing. Altaf, when was the first breakthrough? जब आपको लाइक ये हुआ कि लाइक आप अपना डिस्प्ले करोगे अपना वर्क लाइक फैशन डिजाइनिंग का आपकी क्लोथिंग लाइन व्हेन वाज दैट? सो ये एक मौका नहीं है, आई थिंक मल्टीपल ऐसे मौके आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं यूरोप में था तो ओनली ईयू स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप कर सकते हैं और हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम ईयू स्टूडेंट्स नहीं है। तो उस वक्त एक पत्रिजा पेपे नाम की बड़ी मशहूर कंपनी है फैशन, उसका जो है ओनर आया होगा इंटरव्यूज लेने के लिए। तो मैं बाहर बिल्कुल स्लीव ऊपर करके नॉर्मली जैसे बैठते हैं, मैं बाहर बैठा हुआ था और मैं इंतज़ार कर रहा था, वो जैसे ही आए मैं उसको अपना काम दिखाऊँ और किसी तरह से कोई मौका छोड़ना नहीं है। लाइक कहीं पे भी अगर चांस लग जाता है, ग्रेट। उसने काम वगैरह देखा, फिर वो सेकंड डे उसने मुझे बुलाया वगैरह भी, हमने प्रोजेक्ट वगैरह भी किए। उसके बाद जो बेहतरीन मौका मुझे मिला था अलेक्जेंडर मैक्यूइन के लिए काम करने का, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिज़ाइनर्स में से है। अब पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान आने के बाद उस वक़्त मुशर्रफ का टाइम था। तो मुशर्रफ के टाइम में इमरजेंसी लगी थी, आपको अगर याद हो तो। तो जब इमरजेंसी लगी तो सबके वीज़ा रिजेक्ट हो गए। तो ये मौका ना मेरे हाथ से निकल गया था। तो अब मैं यूके नहीं जा सकता था। फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किया। फाइनली H&M की जो मैनेजर है उसने मुझे कॉल किया और फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, तमाम चीज़ें हुई। फाइनली मुझे हायर कर लिया ना बैंक तो H&M उसके लिए मैंने काम किया। उससे मैंने एक सवाल पूछा था। मैंने कहा इतने जब लोग थे और राइट, उसके मुताबिक मैं अकेला पाकिस्तानी था जिसको आज तक उन्होंने इस तरह से रिक्रूट किया है डायरेक्टली पाकिस्तान से। तो मैंने कहा क्या वजह थी? कोई और लोग नहीं थे? बोलते हैं लोग बहुत थे। तो मैंने कहा कंपैरेटर कौन था? तो बोलते हैं एक यूके का लड़का था। तो मैंने कहा मुझे क्यों लिया? बोलती है बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंसेस। not the experience linked with the fashion, but generally like अप्स एंड डाउन और बहुत सारी चीज़ें। तो उसने कहा शायद आप बेहतर कर पाओगे। फिर हमने साथ काम किया, देन आई बिकेम अ मैनेजर और आज भी हम बहुत ही क्लोज़ हैं। मतलब अगर कोई ब्रिस्टल में से रिक्रूट करता, दे वुड कॉल मी एंड वी वुड डिस्कस लाइक गुड फ्रेंड्स। That's amazing. Like Altaf, like जो diversity of experience की उसने जो बात की और रीजनिंग दी आपको, right? कि you have such a diverse experience. You have seen the ups and downs, right? So let me actually ask you, like your experience working with different age groups, especially Gen Z, right? Uh, what do you think like that will actually relate with your work? आई थिंक देखिए हर जनरेशन की कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ गलत बातें भी, आई गेस। आई थिंक जनरेशन को आपस में कनेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो जो ज़ीद वाला फैक्टर है, वो छोड़ देना चाहिए। आई मीन अगर जेन ज़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मुझे बड़ी कमाल की बात लगती है, अगर जेन से किसी को दोस्त बनाएगा तो वो बिल्कुल उसको दोस्त बनाएगा, ना कि जाना चाहिए बिकॉज़ दोस्त की तरह है, शादी में जाना चाहिए बिकॉज़ सब जा रहे हैं। वो उस तरह के मामलात में नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक मुझे ये बड़ी कमाल की बात लगती है और जिनको वो टाइम देते हैं, जिनके साथ रहते हैं, तो बड़े सिंसियरली रहता है। ये मेरा एटलीस्ट परसेप्शन है। तो मेरे ख़्याल में जनरेशन के दरमियान अगर ब्रिज बनाना है, तो आई थिंक एक-दूसरे को समझना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान एक सर्टेन चीज़ कर रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या है, कम से कम वो समझ लें। Absolutely. Communicating with different groups, like it is absolutely critical. So, Altaf, सब कुछ हो गया. How do you define success? What is success really? ये सवाल का जवाब मैं आपको बहुत चलिए सिंपल करके बताता हूँ। देखिए, जब आप कंटेंट हो जाए, अगर कोई कहता है पैसे आना सक्सेस है, पैसे बिल्कुल ज़रूरी है, बट अगर आप मुतमईन नहीं हैं,
तो वो सक्सेस के दायरे में नहीं आता। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत बिलियनर्स या मिलियनर्स को ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हुए देखा है, हालाँकि सब कुछ है उनके पास। लेकिन सक्सेस सिर्फ़ एक डायमेंशन में नहीं चलती, ये मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के जो है बनती है। आप कब जाके मुतमईन होते हैं, कंटेंट होते हैं, उसको सक्सेस कहते हैं। मतलब आप कल क्या थे और आज क्या हो, उसके दरमियान का फ़ासला सक्सेस है, ना कि आप कितना आगे हो। किसने कहाँ से स्टार्ट किया वो तो नहीं मालूम ना। कौन कितना वेल सेड। सक्सेस आपके अपने आप से जो है ना कंपेयर होती है, ना कि किसी और से कंपेयर होती है। और जहाँ तक मुतमईन होने की बात है, ज़िंदगी में मैंने सिखाया कि देखिए 3 चीज़ें इंसान की अ, इस बॉडी में कह लो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ब्रेन, हार्ट और सोल। अगर ब्रेन पे काम होता है सिर्फ और हार्ट पे और सोल पे नहीं होता है, तो ये ट्रायंगल जो है ना मुकम्मल नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक इन तीनों में बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर रूहानियत पे काम नहीं है, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे काम नहीं है और बाकी चीज़ें चल रही है, तो भी मसले-मसाइल आएँगे। आई थिंक ये डिसिप्लिन का बड़ा अहम हिस्सा है कि इन 3 चीज़ों को बड़ा बैलेंस रखें। अगर बैलेंस रखेंगे, तो उसके बाद आप जो है कंटेंट होंगे। आई थिंक वो सक्सेस है, ना कि सिर्फ़ एक ही चीज़ के पीछे भागना है। मैं नहीं कह रहा हूँ पैसे ज़रूरी नहीं है, पैसे बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ पैसे ही ज़रूरी नहीं है। That's very well said, Altaf. Like it is extremely important to have balance, right? And understand what is important for you. So, Altaf, आज के इस एपिसोड को बिफोर आई एक्चुअली क्लोज, सो अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि हमारा ये पॉडकास्ट 2 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। सो टुडे जो हमने लाइक अल्ताफ के साथ बात की, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक भी। तो हमारे साथ ट्यून रहिए, हमारे साथ इस पॉडकास्ट के अंदर जुड़े रहिए। आपको नेक्स्ट एपिसोड में अल्ताफ के बारे में और भी बहुत कुछ बताएँगे। Altaf, before I close this episode, I want to know like what is one failure that you actually had in your life which actually taught you more than your success? आई थिंक 1 नहीं बहुत सारे हैं। 1 1 आई थिंक फेलियर ज़्यादा होता है, सक्सेस जो है ना कम होती है। अभी भी मैं अपने आप को वैसे नहीं समझता हूँ कि जो अल्टीमेट गोल मुझे हासिल करना था वो हो गया है। बट अब चल रहा है। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, मेरी बहन मुझे पिछले दिनों कहती है कि अगर तुझे फैशन को छोड़ के कुछ और करना हो, तो तू कर नहीं पाता है। अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं कर पाता हूँ। बिकॉज़ ये आई थिंक ये बिल्ट इन हो गया है कि मुझे अगर कुछ और भी कर रहा होगा, जैसे मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह करता हूँ अभी। आई मीन आई लव टू कुक फूड और बेचना और रेस्टोरेंट बिज़नेस वगैरह पसंद है मुझे। बट आर्ट और फैशन की ये जो चीज़ है वो आई थिंक वो कीड़ा कभी निकलने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग अगर मुझे सुन भी रहे हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि फैशन जो है वो एक आर्ट है। मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि फैशन इज़ अ बिज़नेस एंड बिज़नेस इज़ एन आर्ट। अगर ये सोच के चलोगे, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। That's amazing. Very well said, Altaf. So, अपने व्यूअर्स को सिर्फ इस थॉट को एक समराइज़ कर लेते हैं। एक कोई गलती नहीं होती है, आप अपनी ट्रायल एंड एरर से सीखते रहते हैं और जैसे आप अपने करियर के अंदर मूव करते हो, आप उसके अंदर आप उसकी लर्निंग से सीखते हो, मैं आपको उसके एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। प्लीज अल्ताफ, या सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ज़रा एक चीज़ खाली ऐड कर करूँगा, ये बड़ी अहम चीज़ है कि आई थिंक ज़िंदगी को जैसे पिक्सेल नहीं होते कंप्यूटर में, पिक्सेल छोटे-छोटे होते हैं। अगर एक तस्वीर के पिक्सेल बनाए जाए तो छोटे-छोटे होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि कोई टास्क या कोई चीज़ आती है, कोई फेलियर आता है, तो हम पूरी तस्वीर पे ध्यान देते हैं कि ये तो मैं नहीं बना सकता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ पिक्सेल पे ध्यान दिया और उसी को उस एक सर्टेन टाइम में फिनिश किया तो इवेंचुअली वो पिक्चर बन ही जाएगी। आई थिंक ज़िंदगी को पिक्सेल फॉर्म में जीना बहुत ज़्यादा बेहतर है। उससे अगर फेलियर भी होगा तो आप उससे निकल जाओगे। हमें परेशानियाँ, मुश्किलात आती है, बट निकलने का आई थिंक बेहतरीन तरीका यही है कि वन थिंग एट अ टाइम। absolutely, very well said, Altaf. Like I think like this is the perfect analogy, right? So every little improvement counts at the end. So दोस्तों, इसी नोट के साथ अपने इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी अल्ताफ के साथ।
सलाम नमस्ते कनाडा।